क्लास 9th ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2023 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਵਿਦ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਡੋਮੀਟਰ ਕੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 250 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜੜਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੰਥਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿੜਕਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਠੋਸ, ਦਰਵ ਤੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੰਤਰਿਕਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਕਿਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਕਲੈਰਨਕਾਈਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਲੈਰਨਕਾਈਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 300 K ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਤਾਂ 300 K ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 300 - 273। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਸੈਲਸੀਅਸ = 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵੇਗ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰਫਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਪਰੰਤੂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਨ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਰਣ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਰਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਚੀਨੀ, ਸੋਨਾ, ਤਾਂਬਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੌਸਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸ਼ਪੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੜੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਖੋਰ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਖੋਰ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਖੇਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਸਮਾਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੱਕੜ ਦਾ
जलना। तो यह तुहाडा उदाहरण आ इहदे विच पुछी हुई सी, आपां उदाहरणां भी तुहानूं दस दित्तियां। अगे 22वां प्रश्न, दो अजिहे निकड़े अंगां दे नां दसो जिन्हां दा अपना अनुवंशिक पदार्थ हुंदा है। तो सब तो पहला तुसीं आह देख लो की है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट अते जिहड़ा हैगा वा हाँ जी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। तो इसदा आंसर तुहाडा यह हो जाएगा। अगला प्रश्न की है 23वां प्रश्न, सैल का केड़ा अंग शक्ति घर है अते क्यों, ठीक है। तो इसदा आंसर देख लो, आह रहा सैल का केड़ा निकड़ा अंग शक्ति घर है तो क्यों। तो देखो की है माइटोकॉन्ड्रिया नूं सैल का शक्ति घर कहा जाता है। अजिहा इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दे अंदर साह किरिया हुंदी है जिस दे सिट्टे वजों ऊर्जा पैदा हुंदी है। तो तुहाडा आंसर यह हो जाएगा। अगे है अपना प्रश्न, गति दीयां दो समीकरणा लिखो, ठीक है जी। तो यह देखते हैं आंसर इहदा आपां। हाँ जी, तो गणितक विधि द्वारा गति दीयां समीकरणों स्थापित करो। एक समान वेग के अधीन गति के समीकरण एक समान वेग नाल सरलेखी गति कर रही वस्तु के लिए अगे लिखे समीकरण हैं, जिमें कि आह तुहाडा दिता है v = u + at, s = ut + 1/2 a/2 तो v की पावर जी 2 दी हुई है -u की पावर 2 = 2as। तो आह तुहाडा दिता होया वा। अगला हुण अपना प्रश्न की इत्थे यह हो गया। हाँ जी, एक बस की चाल 80 km/h किलोमीटर/h तो घट के 60 km/h 5 सैकेंड में हो जाती है। तो बस का प्रवेग पता करो, ठीक है। यह तुहाडा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ। तो इसनूं भी असीं देखो सॉल्व किया है पूरा। एक बस की चाल 80 किलोमीटर वाली आही सेम प्रश्न आ। इसका उत्तर देखो दिता है, बस का आरंभिक वेग 80 किलोमीटर या फिर दोस्तों 80 × 100 80 × 1000 बटे दे विच 60 × 60, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू आ गई 22.22 ms तो बस का अंतिम वेग जोड़ा है 60 km/h आ गया। या फिर दोस्तों इसनूं इन्होंने इस तरह भी ये 60 × 1000 बटे 60 × 60 60 × 5/18 16.66 ms आ गया। तो टी वेग परिवर्तन लिए दोस्तों लिया गया समा t = 5s। हुण प्रवेग तो आह फार्मूला ला के वैल्यू पुट कर दी तो लास्ट के आंसर इन्होंने इत्थे कर दिता आह वाला, ठीक है जी। तो तुसीं एक बार चंगी तरह इसनूं देख लो, यह तुहाडा सलूशन आ आह वाले न्यूमेरिकल का, ठीक है जी। अगला हुण अपना प्रश्न की इत्थे देखो, किसी रुख दीयां टाणियां नूं तेजी नाल हिलाउण नाल कुछ पत्तियां झड़ जांदियां हन क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं आपां आ रहा, किसी रुख दीयां टाणियां नूं तेजी नाल हिलाउण नाल कुछ पत्तियां झड़ जांदियां हन क्यों। तो देखो अजिहा विराम की जड़ता कारण हुंदा है, टहनियां नूं हिलाउण दे ओह गतिशील हो जांदियां हन जबकि पत्ते विराम की अवस्था विच रहिंदे हन अते झड़ जांदे हन, ठीक है। अगला प्रश्न की है, हाँ जी, तो देखो संवेग के सुरक्षण का नियम लिखो। संवेग के सुरक्षण का नियम, तो देखो संवेग के सुरक्षण का नियम लिखो। तो संवेग के सुरक्षण नियम अनुसार किसी दो वस्तुओं का टकराव तो पहला अते बाद विच जिहड़ा हैगा वा संवेग बराबर हुंदा है जेकर बाहरों कोई होर बल क्रिया ना कर रहा होवे, ठीक है। अगला अपना प्रश्न की है, हाँ जी, फ्लोएम के किहड़े-किहड़े भाग हैं, ठीक है। फ्लोएम के किहड़े-किहड़े भाग हैं, तो देख लो फ्लोएम के वख-वख भाग इस प्रकार हैं, सीव ट्यूबां, सह सैल, ठीक है, फ्लोएम रेशे तो अपना फ्लोएम पेयर कायमा, ठीक है जी। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगला प्रश्न, स्टोमेटा के की कम हैं, स्टोमेटा के कम, तो देखो स्टोमेटा के कम, स्टोमेटा राही पौधे गैसां का आदान प्रदान करते हैं। स्टोमेटा वाष्प उत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है जिस नाल पौधे जमीन में पानी और खनिज चूसते हैं, ठीक है जी। तो वेट दोस्तों इत्थे स्क्रीन जी बंद होगी, 2 मिनट रुको। हाँ जी, तो दोस्तों तुहाडा यह स्टोमेटा भी हो गया। तो हुण अगला प्रश्न है, हाँ जी, तो देखो की पदार्थ के कणा दीयां की विशेषतावां हैं। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, पदार्थ के कणा दीयां विशेषतावां। तो पदार्थ के कणा विचकार खाली स्थान हुंदा है, पदार्थ के कणा सदा ही गतिशील रहंदे हैं, पदार्थ के कणा विचकार आकर्षण बल हुंदा है। अगला प्रश्न देखो कि इत्थे समअंगी अते बिख, हाँ जी, बिखम अंगी मिश्रणां विच अंतर दसो, ठीक है जी। तो देखो आ रहा समअंगी अते बिखम अंगी मिश्रणां विच अंतर। तो समअंगी मिश्रण का पहला पॉइंट देखो की है, इसकी बनावट एक समान होंगी है, ठीक है। बिखम अंगी की जिहड़ी हैगी आ इसकी बनावट एक समान नहीं होंगी। दूसरा, इस मिश्रण विच जिहड़ा हैगा वा संकटक वखरे वखरे जिहड़े हैगे आ विखाई नहीं दिंदे। इस मिश्रण विच जिहड़े हैगे आ संकटक जिहड़े हैगे आ वक्खो वक्खे दिखाई दिंदे हन। उदाहरण इहदी हैगी आ पानी अते चीनी घोल, इहदी उदाहरण हैगी आ पानी अते तेल का मिश्रण, ठीक है जी। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। हुण अगला प्रश्न देखते हैं, अंबीबा अपना भोजन किवें प्राप्त करता है। अंबीबा, ठीक है। तो यह देखो अंबीबा अपना भोजन किवें प्राप्त करता है। अंबीबा एक सैली जीव है, यह अपनी लचीली प्लाज्मा झिल्ली विचों आप जिहड़ी हैगी आभासी पैर बनाउंदा है अते इन्हां आभासी पैरां नाल ओह भोजन कणां नूं सैल दे अंदर लै जांदा है। इस क्रिया नूं अंतर ग्रहण कहा
ਜਾਂਦਾ है। ठीक है जी। अगला अपना प्रश्न की इत्थे चाल अते वेग विच अंतर दसो। ठीक है, तो देखो चाल अते वेग। ठीक है जी। चाल का देखो सब तो पहला पॉइंट यह समय नाल दूरी नूं तय करन दी दर है। ठीक है, वेग यह समय नाल विस्थापन नूं तय करन दी दर है। ठीक है जी। यह एक स्केलर राशि है, यह एक वैक्टर राशि है, यह ऋणात्मक नहीं हुंदी है, यह ऋणात्मक हो सकता है वेग। ठीक है जी। तो तुहाडा आंसर यह हो गया। तो हुण अपना अगला प्रश्न की है, एक गड्डी का पुंज 1500 kg वाला। ठीक है जी। तो आ भी असीं लभ लिया वा। आ देखो एक गड्डी का पुंज 1500 kg वाला, सेम यही प्रश्न आ। ਇਹਦਾ आंसर देख लो बस इन्ना का ही हैगा वा। 250 ਜਿਹੜਾ हैगा वा दिता है गड्डी का पुंज। ठीक है जी। गड्डी का प्रवेग इन्ना दिता होया वा। हुण माइनस रगड़ बल। ठीक है जी। तो गड्डी रोकण विच लगा बल, तो ਇਹਦਾ फार्मूला ला के वैल्यूज पुट कर दी, तो माइनस 2550 एन आंसर आ गया। ठीक है जी। तो उस तो बाद हुण अपना हैगा दिल पेशी के 3 लक्षण दसो। ठीक है जी। दिल पेशी के 3 लक्षण, तो देखो दिल पेशी के 3 लक्षण, यह अनिश्चित होंदियां हन, यह विलणकार अते शाखावां वाली हुंदी है, यह एक केंद्रक वाली हुंदी है, यह सारी उम्र लयबद्ध तरीके नाल फैलदी अते जिहड़ी हैगी सुगड़दी रहिंदी है। तो तुहाडा आंसर यह हो जाएगा। हुण अपना अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं। सरल तो गुंझलदार टिशू विच 3 अंतर दसो। ठीक है जी। तो देखो सरल, ठीक है जी, तो पौधों में सरल टिशू गुंझलदार टिशूआं तो किवें भिन्न है, यानी कि वो डिफरेंस पूछा होया सीगा आपां नूं। सरल दे विच सरल टिशू सिर्फ एक किस्म के सैलों तो मिल के बनते हैं, गुंझलदार टिशू एक तो वध किस्मां के सैलों तो मिल के बनते हैं। सरल टिशू के सैल इक्को जिहे कार्य करते हैं, गुंझलदार टिशूआं के सैल वक्रे वक्रे कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अगला तो तीसरा पॉइंट की है, ये उदाहरण आ। ठीक है जी। देखो की है पेरनकाइमा। ठीक है जी। कोलान, हाँ जी, कोलन कायमा अते जिहड़ा हैगा वा स्केलरन कायमा। ठीक है जी। तो यदी उदाहरण हैगी आ। ठीक है जी, कि अपनी जाइलम अते फ्लोएम। ठीक है। तो तुहाडा ये आंसर हो गया। तो अगला अपना प्रश्न देखो की है, हाँ जी, कप की बजाय प्लेट विच गर्म दुध जां फिर चाह जल्दी क्यों पी लेंदे हाँ। ठीक है जी। आपां तो इहदा आंसर भी आ देख लो, आही प्रश्न आ, आंसर ये रहा इहदा। हाँ जी। तो देखो उत्तर की है, प्लेट विच पाए गर्म दुध की जिहड़ी हैगी सतही खेत्रफल वध हुंदा है, इसलिए इसकी सतह तो जिहड़ा हैगा बाष्पीकरण तेजी नाल हुंदा है, जिस कारण दुध ठंडा हो जाता है अते उस नूं जल्दी पी लेंदे हाँ। ठीक है। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे है, ठीक है, प्रश्न तुहाडा देखो की है, हाँ जी, 38वां प्रश्न इत्थे, हुण जदों कोई गति मान बस अचानक रुक जाती है तो तुसीं अगे वल नूं डिगदे हो, तो जदों विराम अवस्था ते प्रवेगित हुंदी है तो पिछे वल डिगदे हो क्यों। ठीक है। तो दोस्तों आही आंसर प्रश्न अपना। तो देखो आही तुहाडा प्रश्न सीगा जदों गतिमान बस वाला। ठीक है। तो इसदा उत्तर देखो सीधा, तुसीं गतिमान बस दे रुकण ते असीं गति की जड़ता कारण अगे वल डिग जाते हाँ, विराम बस ते चलन ते असीं विराम की जड़ता कारण पिछे वल डिग जाते हाँ। तुहाडा आंसर ये हो गया। अगे अपना 100 kg पुंज वाली एक वस्तु 6 सैकेंड। ठीक है जी। आ तुहाडा प्रश्न आ, तो इहदा भी असीं हल लभ्या होया वा आ रहा 100 kg पुंज वस्तु 6 सैकेंड। तो सेम यही आ, इहदा हल इत्थों शुरू आ, देख लो दोस्तों। ठीक है। तुसीं इसनूं देख सकते हो हल, इत्थे वस्तु का पुंज दिता होया, वस्तु का मुढला वेग दिता होया वा। ठीक है जी। वस्तु का अंतिम वेग, समांतराल दिता होया वा, मुंडला जां फिर पहला जिहड़ा हैगा संवेग दिता होया वा, वैल्यू लगा के इन्होंने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है जी। अंतिम संवेग आ गया, वस्तु के लगते बल का मान। ठीक है। तो 50 एन इसका आंसर आ गया। पूरा का पूरा इत्थे ही सॉल्व हो गया। ठीक है जी। तो उस तो बाद हुण इहदे नाल ऑप्शन आ, एक रेसिंग कार का एक समान प्रवेग 4 MS पावर 2 दी हुई आ, तो यह भी असीं लभ्या होया वा। आ देख लो एक रेसिंग कार, आही सेम आ तुहाडा, इहदा हल भी देख लो तुसीं, रेसिंग कार का प्रवेग। ठीक है जी। कार का मुढला वेग, समा ते रेसिंग कार का अंतिम वेग असीं जाणदे हाँ फार्मूला। तो रेसिंग कार का जिहड़ा है 3S तो बाद वेग V = 12 MS-1 होएगा। ठीक है जी। तो तुहाडा ये आंसर हो गया। अगे एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई कि इसका विस्थापन 0 हो सकता है, जेकर हाँ तो अपने उत्तर नूं उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है जी। तो देखो आही तुहाडा प्रश्न सीगा, एक वस्तु द्वारा जिहड़ी है उदाहरण नाल समझाओ, वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई। ठीक है जी। आही सेम क्वेश्चन आ, मिला लो चाहे जी हाँ, अजिहा हो सकता है जेकर वस्तु चक्करकार पथ विच चलेगी अते अंत विच आरंभिक स्थान उत्ते पहुँच जाएगी, तो वह दूरी तो तय करेगी परंतु उसका विस्थापन 0 होवेगा। तो तुहाडा ये आंसर भी हो गया। अगे है ठोस द्रव की गैस विच जिहड़ा हैगा अंतर दसो। ठीक है। तो देखते हैं आपां, चलो ठोस द्रव अते गैस दे विच। ठोस का पहला पॉइंट, ठोस का आकार अते आयतन निश्चित हुंदा है, द्रव का आकार निश्चित नहीं हुंदा है पर आयतन निश्चित हुंदा है, गैस का आकार अते आयतन निश्चित नहीं हुंदे। दूसरा पॉइंट, ठोसां दे कणां विच खाली स्थान सब तो घट हुंदा है, द्रवां दे कणां विच खाली स्थान ठोस तो वध पर गैस तो घट हुंदा है, गैस दे कणां विच खाली स्थान सब तो वध हुंदा है। ठोस का कणां विच खिच बल सब तो वध हुंदा है, द्रव दे कणां विच खिच बल
ठोस तो घट पर गैस तो वध हुंदा है। गैस दे कणां विच खिच बल सब तो घट हुंदा है। चौथा, ठोसी दा निपीड़न नहीं हुंदा है, द्रवां दा निपीड़न नामात्र हुंदा है, गैसां दा निपीड़न सब तो वध हुंदा है। ठीक है जी, तो ये तुहाडा आंसर हो गया। अगे है लोहे दी अलमारी कमरे दे तापमान ते ठोस क्यों है। ठीक है, तो इहदा आंसर भी देखो आ रहा, लोहे की अलमारी निश्चित स्पष्ट सीमावां ਅਤੇ स्थिर आयतन ਹੁੰਦਾ है। ना मात्र दबीण योग्यता कमरे का तापमान लोहे के उबाल दर्जे तो घट ਅਤੇ पिघलन दर्जे तो वध कमरे के तापमान ने उसकी अवस्था परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए यह उस तापमान से ठोस है। ठीक है, तो आंसर यह हो गया। अगे अपना प्रश्न की है, मिश्रण ते यौगिक विच अंतर दसो। ठीक है जी, मिश्रण ते यौगिक विच, तो मिश्रण ਅਤੇ यौगिक विच अंतर देखो। मिश्रण का सब तो पहला पॉइंट, मिश्रण विच घटक किसी भी अनुपात विच हो सकते हैं। यौगिक के घटक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ अनुपात ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਗੁਣਾ ਉਸ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਯੌਗਿਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਘਟਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ संयोग तो बनते हैं। तो थोड़ा ये आंसर भी हो गया। अगे है संतृप्त, हाँ जी, संतृप्त घोल की परिभाषा दिओ। ठीक है जी, तो सानू परिभाषा तो नहीं, इसका थोड़ा जिहा मतलब मिलिया वा। देखो, संतृप्त घोल किसी विशेष तापमान ते किसी घोल विच जदों होर घुलण ना घुले, ठीक है जी, घुलित ना घुले तो अजिहे घोल नूं संतृप्त जिहड़ा हैगा घोल कहंदे हन। ठीक है, तो थोड़ा ये आंसर भी हो गया। अगे अपना पौधा सैल ते जंतु सैलों विच अंतर दसो। ठीक है जी, तो पौधा सैल ते जंतु सैल, आ देखो पौधा सैल ते जंतु सैल। पौधा सैल ये आयतकार ते वड्डे हुंदे हन, ये चपटे ते छोटे हुंदे हन। इन्हां विच जिहड़ा हैगा प्लास्टिज हुंदे हन, इन्हां विच प्लास्टिज नहीं हुंदे। इन्हां विच रसधानियां, ठीक है जी, रसधानियां वड्डियां हुंदियां हन, इन्हां विच रसधानियां छोटियां ते खिलरियां हुंदियां हन। इन्हां विच सैल कंद हुंदे है, इन्हां विच सैल कंद नहीं हुंदे। इह वाधू जिहड़ा हैगा भोजन नूं स्टार्च के रूप में जमा कर सकते हैं। यह वाधू भोजन नूं जिहड़ा हैगा वा ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते हैं। इन्हां अंदर जिहड़ा हैगा वा की है दोस्तों, हाँ जी, सेंट्रोसोम नहीं हुंदे हन। इन्हां अंदर जिहड़े हैगे आ सेंट्रोसोम हुंदे हन। तो थोड़ा यह आंसर भी हो गया। अगे है सैलां नूं जीवन दी जिहड़ी हैगी आ संरचनात्मक ਅਤੇ क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है जी, तो आ देखो आही है ना, सैलां नूं जीवन की संरचनात्मक ਅਤੇ क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो अजिहा इसलिए क्योंकि सारे सजीव सैलां तो बने हुंदे हैं, तो सजीवां दीयां सारियां ही गतिविधियां सैलां द्वारा ही कंट्रोल कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे है धारीदार ਅਤੇ धारी रहत ਤੇ दिल पेशी विच अंतर दसो। ठीक है जी, तो आही तुहाडा प्रश्न है कि भाई धारीदार, धारी रहत ਅਤੇ दिल पेशी विच अंतर दसो। तो देखो तुलना इस प्रकार है, धारीदार पेशियां ਇਹ ਅਣਇੱਛਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਛਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੰਡਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਖਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ जुड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है जी, तो यह ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ गति पैदा ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। तो ਇਹਦੀ डायग्राम ਤੁਸੀਂ ਆ देख लो, धारीदार पेशी की यह डायग्राम दी हुई है। दूसरा धारी रहत पेशियां, तो यह अनिश्चित ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਾਰੀ ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਖਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੇਬੋਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਗੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਰਾਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ है जी, तो आखिरी प्रश्न है, इस तो बाद साडा सारा प्रश्न खत्म। आ देखो न्यूरॉन का एक लेवल किता चित्र इस प्रकार हैगा वा, तुसीं इसनूं चंगी तरह देख लो। नाड़ी का अंतिम सिरा, ठीक है, एक्सॉन, डेंड्राइट, केंद्रक, सैल बॉडी, ठीक है, दिते होए तुहाडे, ते चंगी तरह तुसीं इसनूं देख लो। आह तुहाडा दोस्तों पूरा का पूरा पेपर असीं सॉल्व करा दिता। इस तो पहला भी असीं जिहड़ा हैगा एक पेपर होर सॉल्व कराया होया वा, ये भी पेपर तुहानूं फुल सॉल्व करा दिता, जो कि क्लास 9th के साइंस का पेपर सीगा विज्ञान का। ठीक है जी, वो वीडियो अगर तुसीं नहीं देखी, फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 सी, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा, पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना, तुसीं उत्थे जाके देख लो। बाकी अगला पेपर भी तुहाडा आएगा। ऑल द बेस्ट तुहाडे एग्जाम दे लई।